and welcome back to our YouTube channel Vision Civil Service. So as you all know, my name is Lakshita and I'm a faculty of current affairs and polity with Vision Civil Service. जैसा कि आप जानते हैं, विजन सिविल सर्विस हैज़ बीन सर्विंग इन दिस फील्ड फॉर लॉन्ग ईयर्स नाउ एंड सिमिलरली हमारे डायरेक्टर अनिल कुमार सर इस फील्ड में बहुत सालों से हैं एंड दे हैव मेड मैनी students reach their goals, reach their success point. Okay, talking about Vision Civil Service, it's located in Sector 15 Noida, and you can also visit our site, that is www.visioncivilservice.com. Okay, and please do like, share and subscribe our channel so that you can get more such videos of current affairs, polity, economy, etc. And coming towards our today's topic, that is current affair discussion, so we'll move forward to that. So now we'll start with our daily current affairs. Our first current affair is Udyanidhi Stalin took oath as Deputy CM of Tamil Nadu. So as you know, all know that Chief Minister of Tamil Nadu, M.K. Stalin, के बेटे son Udyanidhi Stalin has taken the oath as the new Deputy Chair Chief Minister of the state. So who is the Chief Minister of Tamil Nadu? M.K. Stalin. And who has taken Deputy Chief Minister's oath? Udyanidhi Stalin. And the cabinet has reshuffled and several members have also changed in their government. And three other DMK MLAs like R. Rajendra, who is the Salem North leader, Govi Chezian, Tiruvandamudra and S.M. Nasir Avadi, they have also taken oath as the ministers of the government of the Tamil Nadu government. And Governor R.N. Ravi have administered the oath of office and secrecy at a simple ceremony held at Raj Bhavan. So they have taken the oath where? By the governor, who is R.N. Ravi, and they have taken it in a simple ceremony, not very ceremonious event in which they have invited much people, but they have taken this event as a simple oath taking ceremony at the Raj Bhavan. Okay, coming to the next topic, that is Lara, the England Chronicles, a cricket legend's journey. You all know about Brian Lara. He stands as a singular figure in the annals of cricket history. His uniqueness is not just a matter of opinion, but a fact etched in the record books of sport. So as you all know, Brian Lara has fetched many awards and has put his name in the record books of sports. And the cricketing world has not seen as a batsman quite like him before, and it's also certain that we won't see him again. मतलब क्रिकेटिंग फील्ड में ऐसा बैट्समैन ना आज तक देखा गया है ना आगे देखा जाएगा. ही इज़ अ बॉर्न लेजेंड, वी कैन से. एंड द नेम इज़ ब्रायन लारा. ओके, नेक्स्ट, PM Modi virtually inaugurates development projects worth 11,200 crore in Maharashtra. So as you all know, आजकल assembly elections का time चल रहा है, नई नई schemes by different governments are being launched. So similarly, PM Modi have inaugurated a development project that is worth around 11,200 crores in which state? In Maharashtra. Okay, एंड इट हैज़ बीन डन वर्चुअली, मतलब कोई ऑन फील्ड वाला उन्होंने ये इनाग्रेशन नहीं किया है, इट्स डन वर्चुअली कंप्यूटर पे बेसिकली. ठीक है, एंड दे हैव लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स इन महाराष्ट्र. एंड दिस इवेंट कम्स आफ्टर हिज स्केड्यूल्ड विजिट टू पुणे ऑन September 2024 was cancelled due to heavy rain in the city. और ये इवेंट पहले होने वाला था, नॉट वर्चुअली, ठीक है, ये पहले नॉर्मली इनाग्रेट करा जाने वाला था, बट ड्यू टू हैवी रेन इन पुणे सिटी द इवेंट वॉज cancelled, and thus this inauguration ceremony of the development projects, various development projects in Maharashtra has been done by PM Modi virtually. Okay, coming to the next topic, that is Shank Air, India's newest airline set to launch. So Shank Air has been the India's latest airline
दैट इज टोल्ड टू बी डेब्यू, मतलब उसका स्टार्ट कब होने वाला है, बाय द एंड ऑफ 2024, मतलब दिसंबर 2024 के एंड तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट दिस एयरलाइन विल बी लॉन्च एंड इट इज़ द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ इंडिया. ओके, and it has also received the approval from the civil aviation ministry, because अगर कोई भी एयरलाइन लॉन्च होती है, कोई भी एयरलाइन को स्काई में जाना है, then they need the approval of the civil aviation ministry. ठीक है. And why this news becomes important for us, because this is the development for Uttar Pradesh, as the Shank Air aims to become the state's first scheduled airline. ठीक है, उनकी यूपी स्टेट की पहली शेड्यूल्ड एयरलाइन बनने वाली है शंक एयर, मतलब इट विल टेक ऑफ फ्रॉम यूपी हब उसका हब होगा. ठीक है, एंड लखनऊ will be its hub and upcoming Noida International Airport. So Shank airline will be mostly found in where Lucknow and the newly what can one say कि जो नोएडा का न्यू एयरपोर्ट लॉन्च होने वाला है वहाँ पे इस एयरलाइन को फाइंड किया जाएगा. एंड दिस एयरलाइन विल नॉट ओनली फोकस ऑन जस्ट इंटर स्टेट रूट्स बट इंट्रा स्टेट रूट्स. ओके, मतलब एक स्टेट के अंदर के रूट्स को भी ये कवर अप करेगा, मतलब यूपी में ही जितनी स्टेट्स हैं दे विल ट्राई कि उनके ही अंदर इंटरकनेक्टेडनेस बन जाए. एंड ऑल्सो इंटर स्टेट्स, इंट्रा भी और इंटर स्टेट्स भी, दैट विल रेज देयर डिमांड्स. इससे क्या होगा, इनकी एयरलाइन की डिमांड्स बढ़ेगी. पहली बात तो इंडिजीनियस एयरलाइन है, सेकेंडली जब ये इंटर स्टेट भी चलेगी एंड इंट्रा स्टेट भी चलेगी, ऑब्वियसली इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट फ्लाइट के ऑप्शंस बहुत कम अवेलेबल है हमारे पास अभी के टाइम पे. ठीक है, नेक्स्ट, NATO टू एस्टैब्लिश नॉर्दर्न लैंड कमांड इन ईस्टर्न फिनलैंड. तो NATO क्या करने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज NATO? NATO इज अ ग्रुप एंड उसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो NATO इज प्लानिंग टू सेट अप अ न्यू लैंड कमांड इन फिनलैंड that is near the Russian border, and when it is planning to establish in 2025, and they will also plan to lead land force operation in northern Europe during potential military conflicts, and they are also planning कि वो अपने land based operations भी कवर अप कर सके कहाँ पे? यूरोप में, क्योंकि आजकल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत बढ़ गए हैं. जैसे आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वाला इशू कितना चल रहा है. दैट्स वाई फिनलैंड ने नाटो को लास्ट ईयर ज्वाइन किया था आफ्टर रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2022 इन प्रिपेयरिंग फॉर द अलायंस प्रेजेंस ऑन इट्स टेरिटरी. तो जब लास्ट ईयर हमने देखा है कि रशिया यूक्रेन का जब ये नाटो के चक्कर में युद्ध शुरू हुआ है, बेसिकली आफ्टर दैट ओनली फिनलैंड हैज़ जॉइन नाटो एंड इट इज़ ट्राइंग टू प्रिपेयर एन अलायंस ऑन इट्स टेरिटरी, कि कोई उसकी टेरिटरी को धक्का ना पहुंचा पाए या उसको हार्म ना कर पाए, इसलिए उसे नाटो को एक तरीके से ज्वाइन किया गया है. एंड उनके जो फिनलैंड के डिफेंस मिनिस्टर हैं एंटी हैकेन, दे हैव अनाउंस दैट द प्रपोजल टू एस्टैब्लिश द कमांड एट फिनलैंड्स आर्मी हेडक्वार्टर इन मिकिली. देन दे हैव ऑल्सो प्रपोज दैट दे विल एस्टैब्लिश देयर आर्मीज हेडक्वार्टर इन मिकेली. ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स हिट रिकॉर्ड हाई ऑफ $692.3 बिलियन. तो इंडिया के जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स हैं दे हैव रीच्ड अ हाई रिकॉर्ड ऑफ $692.3 बिलियन. ठीक है, एज ऑफ सितंबर 2024 का जो रिकॉर्ड अभी तक हमें मिला है. एंड दिस हैज़ बीन किसने इसको रिलीज़ किया है रिपोर्ट को? देखो, ऐसे कोई भी रिपोर्ट को हम लोग जब तक बाय एन ऑफिशियल साइट या ऑफिशियल कोई बॉडी उसको नहीं रिलीज़ करती तब तक हम किसी भी रिकॉर्ड को वैलिड नहीं मान सकते. तो इसको किसने रिलीज़ किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है. एंड द रिजर्व्स इंक्रीज बाय $2.84 बिलियन ड्यूरिंग द वीक, फॉलोइंग अ टोटल राइज ऑफ $19.3 बिलियन ओवर द प्रीवियस 5 वीक. तो लास्ट वीक में इन्होंने $2.84 बिलियन का राइज देखा है. The rise in the reserve was driven by the RBI's intervention in the forex market and inflows into the local stock and bond. तो राइज का मेन रीज़न क्या माना जा रहा है? क्योंकि आरबीआई ने कुछ इंटरवेंशंस करे हैं, कुछ बीच में मतलब बोल सकते हैं इंटरवीन किया है फॉरेक्स मार्केट में,
और कुछ लोकल स्टॉक्स और बॉन्ड के सेल परचेज इनफ्लोज में भी, ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल एस्टैब्लिश जीओएम ऑन कंपेंसेशन टैक्स। तो जीएसटी आपको पता है, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी जो काउंसिल है उन्होंने 10 मेंबर ग्रुप बनाया है ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का उन्होंने 10 मेंबर ग्रुप बनाया है बेसिकली, एंड इट हैज़ बीन चेयर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस बाय पंकज चौधरी. And what issues will they discuss in this? That they would address the future taxation of luxury, sin and demerit good as the compensation is set to expire on March 2026. So they will address the issues of taxation related to the luxury items, and also demerit as the compensation says is going to expire in 2026. And this group of ministers, they are representatives from which states? असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. तो एक इन स्टेट से ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने हैं 10, इनको बनाया गया है रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू सेंड द रिपोर्ट, कि सबमिट करने को रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ December 31. ओके, बाय दिस ईयर के एंड तक उनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला गया है. दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज न्यूज़. इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप किए हैं. इट इज़ शॉर्ट करंट अफेयर्स न्यूज़, जिससे कि आपके फटाफट टॉपिक्स कवर अप हो जाए. कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, कोई भी टॉपिक समझने में, और इफ़ यू वांट कि वी डिस्कस ऑन सर्टेन टॉपिक दैट यू आर विलिंग टू टेल अस, कि आपको लगता है ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और यू वांट सम डिस्कशन ऑन सम टॉपिक रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, current affair, polity or any other topic that has been news recently, anything, you can just comment down below and we'll see it and we'll just make a video of it. ठीक है, so please do cooperate with us also. We are making these videos for you only, so cooperate with us, we'll also cooperate with you, we'll make videos as you wish. ठीक है, and thank you for watching this video. I hope you are liking this video. Okay, we'll meet soon. Bye bye.